Hello, beautiful souls. Welcome back to Om Mahamaya. This is Akansha, your tarot reader friend, and I'm using this space to give you more clarity about your life and guide you on a path to become your higher self. Now, आज की reading is going to be entirely about the month of August, how this month is going to be for you, what is bringing towards you, and क्या energy आपकी रहने वाला ही है. Everything we are going to cover, what is going to happen in the month of August. Like all my readings, this reading will also be quick and completely detailed reading. So without any further ado, let's just jump right into the video. ओके गाइज, सो लेट्स चेक कि अगस्त का महीना आपके लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है, क्या होने वाला है अगस्त मंथ के अंदर आपके साथ. What are the messages that you need to hear for the month of August? What is going to happen in August? Let's check. Let's just get started with this reading. Wow, the first card is Gorilla. Take the time to listen compassionately to those you love, especially your family members. Now, within the Gorilla, I see there might be some sort of a family drama going on around you. Family में हो सकता है फैमिली आपके अगेंस्ट जाती हुई आपको लग रही है. आपके और आपकी फैमिली के जो ओपिनियंस हैं वो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स मुझे दिख रहे हैं एंड देयर इज़ लैक ऑफ लव एज वेल. आप चीज़ों को काफ़ी एग्रेसिवली अप्रोच कर रहे हो, बट इन ऑगस्ट यू नीड टू बी मोर कंपैशनेट. एक बार शांति से आप उनकी बातों को सुनकर देखो. मे बी व्हाट दे हैव टू से टू यू विल मेक सेंस इफ़ यू आर ओपन टू हियर इट विद लव. ओके, सो इट्स काइंड ऑफ स्पेशली अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स. हो सकता है कि कोई और भी आपसे कुछ कहना चाह रहा हो. तो अगस्त का मंथ इज़ ऑल अबाउट ट्राइंग टू काम योर सेल्फ, trying to approach things with love and taking time out to observe the situation before reacting. So August ka month is somewhere going to be a gorilla energy. Okay, like gorillas are quite active, quite aggressive, and कहीं ना कहीं आपका August का month भी कुछ ना कुछ इसी तरीके से start होगा. It might begin with some sort of a family drama, and you need to be really careful in it. You need to be really compassionate in it. You need to act from a place of love in it. Okay, so make sure that this is somewhere in your mind when you approach the situation. Now let yourself stand out and be noticed. Next we have peacock energy, and peacock energy देखिए कहीं ना कहीं आपको यही बोलना चाह रही है कि आप सुनिए दूसरे की बात को, शांति से सुनिए. लेट the other person also feel like they are being heard by you, like you also understand their perspective, and then when you put your point out to them, it will make you stand out as well. Okay, अपने point को उनके सामने रखो, वो नोटिस किया जाएगा. लेकिन you cannot go on having a conversation which is kind of like one way only, कि तुम मेरी बात को समझो एंड मैं जो कह रहा हूँ वही चीज़ को समझो, अपना मुझे मत बताओ. दैट विल नॉट गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन. सो इस चीज़ के अंदर मुझे दिख रहा है कि आपको फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, वर्क रिलेटेड एनवायरमेंट हो गया, यू नीड टू अप्रोच द सिचुएशंस with love and then put your point ahead. You will definitely stand out and be noticed. Like जैसे peacock होता है, you might not notice it in a general situation, but when it opens its feathers, it is so beautiful that you will notice
इट इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो आप अगर कुछ बात कह रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हर वक्त अगर कुछ रिएक्ट करते रहेंगे ना, तो सामने वाला आपको सीरियसली नहीं लेगा और उसको लगेगा यार इसका तो यही पैटर्न है। बट वेन यू स्पीक, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग लिमिटेड वर्ड्स एंड मेकिंग द मोस्ट इम्पैक्ट। दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गेट नोटिस्ड दिस मंथ ऑफ अगस्त। तो अगस्त के अंदर भी, चाहे वो फैमिली के साथ कोई डिस्प्यूट है, चाहे वो फैमिली के साथ कोई डिसएग्रीमेंट है, चाहे वो वर्क प्लेस में कोई agreement है, you are definitely going to stand out, that is for sure. But to stand out, you need to put your point in such a way that it gets noticed, you know. ज़्यादा मत बोलो, हर बात पे मत बोलो, बट वेन इट इज़ रिक्वायर्ड जस्ट पुट योर पॉइंट अहेड। यू नो, पीकॉक कहीं ना कहीं इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद कृष्ण भगवान। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब ज़रूरत पड़ी, जब मर्यादा भंग हुई, तो उन्होंने भी गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। जब अर्जुन राह भटक रहे थे तो उन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल भगवद गीता टुडे। सो कहीं ना कहीं आपके लिए भी कहीं ना कहीं मैसेज है, आप किसी की लाइफ का, आप किसी की जर्नी का एक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो। ओके, हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा एग्रेशन में चल रहा है, उसको भी आप एक पीस का रास्ता और एक डिफरेंट वे टू अप्रोच थिंग्स दिखा सकते हो। यू कैन मेक अ ग्रेटर इम्पैक्ट इन समवन्स लाइफ, बट टू डू दैट यू ऑल्सो नीड टू कम बैक टू योर सेल्फ, यू ऑल्सो नीड टू स्टे काम एंड पीसफुल इन योर एनर्जी। तो स्टैंड आउट करेंगे आप ज़रूर, किसी के गार्जियन भी बनेंगे, किसी के सपोर्टर भी बनेंगे, किसी को रास्ता भी दिखाएंगे, आगे का पाथवे भी दिखाएंगे, और इसमें कहीं ना कहीं आप मैजिकली नोटिस्ड भी किए जाएंगे। मतलब मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम, maybe around the first half of 2023, it has been commendable, and because of this growth you are where you are today. आप आज इतना ज़्यादा you are spiritually inclined, आपको हर एक इवेंट के पीछे का मतलब कहीं ना कहीं समझ में आने लगा है। द सिंक्रोनिसिटीज इन योर लाइफ, दे आर नॉट कोइंसिडेंसेस, यू नोटिस दैट ऑल्सो कि कहीं ना कहीं एक डिवाइन गाइडेंस है मेरे साथ, कहीं ना कहीं आई एम ऑन द राइट पाथ। दैट इज़ वाई एवरीथिंग इन माई लाइफ इज़ फॉलोइंग इन टू द प्लेस एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई मुझे आपकी दिख रही है। एंड यू नो, चाहे आपकी कितनी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, यू मस्ट ऑलवेज रिफ्लेक्ट दैट नॉलेज ऑन टू अदर्स, यू मस्ट ऑलवेज शावर दैट नॉलेज ऑन टू अदर्स, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और ज्ञान बांटने से क्या होता है कि हमें भी वो चीज़ हमारे कॉन्शियस में हमेशा एक्टिव रहती है। दैट हेल्प्स अस टू स्टे अलाइंड विद आवर ओन एनर्जीज एज वेल। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जिसकी भी मदद करें, टेक दैट एज अ यू नो साइन फॉर योर सेल्फ ऑल्सो, कि आपको भी लाइफ में वो चीज़ें अप्लाई करना ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट अप वी हैव द आउल, ब्यूटिफुल। ओके, पहली बात तो पहले हमारे पास पीकॉक आ गया कृष्ण भगवान का, एंड नेक्स्ट अप हमारे पास आउल आ गया, दैट टू हवाईयन आउल, लक्ष्मी माता का। मे बी दे आर शावरिंग ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑन यू। एंड इस वक्त पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है, जिसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है ऑफकोर्स। तो आप दिस कंसिडर दिस एज अ साइन, आप उनकी पूजा कीजिए, आप लक्ष्मी माता को मनाइए, आप कृष्ण भगवान को मनाइए, वो कहीं ना कहीं अपने ब्लेसिंग्स आप पर शावर ज़रूर करेंगे। नाउ आउल आपके लिए मैसेज लेकर आया है दैट योर एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स आर ऑफरिंग यू गाइडेंस नाउ, सो पे क्लोज अटेंशन टू साइंस एंड ओमेंस फ्रॉम देम। देखिए, कहीं ना कहीं ये आउल आपके लिए एक मैसेज लेकर आया है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, या जिन भी भगवान को आप मानते हो, वो आपको अगस्त मंथ के अंदर कुछ ऐसे साइंस देने वाले हैं जो शायद आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो कि मतलब कि मैं सही जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, भगवान मुझे कोई इशारा तो दिखाएं। अगर इस तरीके के साइंस की आप वेट कर रहे हो, तो इन दी मंथ ऑफ ऑगस्ट यू आर गोना get a lot of signs. Just few moments ago I was talking about synchronicity, right? तो कहीं ना कहीं आपको एहसास होगा इस महीने के अंदर कि कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं। वो आप कोइंसिडेंटली 1111 या कोई नंबर ऐसी, एंजल नंबर ऐसी ही नहीं देख लेते हो। इट इज सिंक्रोनिसिटी, इट कम्स टू यू एट द राइट टाइम, इट कम्स टू यू एट द डिवाइन टाइम। तो वो चीज़ें आप अगस्त मंथ के अंदर नोटिस करोगे, कुछ ओमेन्स आप नोटिस करोगे, एंड दे विल बी गुड ओनली। कुछ होता है ना कि जैसे कहीं हम लोग बाहर जा रहे, कंसिडर आउल ओनली। सोचिए कि आप वैसे तो आउल सिर्फ रात को ही दिखेंगे ना आपको, सोचिए कि आप रात को ही कहीं किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं ना, आपको आउल दिख जाए,
राइट, टू कंसिडर इट एज अ गुड ओमेन कि आपका काम ज़रूर ज़रूर बनेगा. एंड वाई ओनली आउल. अगर आपको लक्ष्मी माता से एसोसिएटेड कोई भी चीज़ दिखती है, इट कुड बी पिंक, ब्राइट पिंक कलर लाइक दिस वन, राइट, ब्राइट पिंक कलर लाइक दिस वन भी हो सकता है, या फिर आपको हो सकता है लोटस फ्लावर दिख जाए, या कोई ऐसी चीज़ दिख जाए जो माइट बी अ साइन फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स. इट कुड बी एनी थिंग. जैसे कृष्ण भगवान से रिलेटेड आपको पीकॉक दिख गया, तो make sure that you are open to receiving these messages from your spirit guides, from your angels, from the God that you follow. वो आपको ज़रूर इस मंथ के अंदर गाइड करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस वो ज़रूर लेकर आएंगे आपके लिए इस मंथ के अंदर. that will make you realize, that will make you feel that I am doing right in my life, I am on the right path, and everything that is happening in my life is happening because of the divine intervention only. कहीं ना कहीं भगवान ही आपको उस चीज़ पर लेकर जा रहे हैं, उस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, उस रास्ते पे आपको गाइड कर रहे हैं. तो अगस्त मंथ कहीं ना कहीं ओवरऑल आपकी एनर्जी जो मुझे दिख रही है बहुत पॉजिटिव दिख रही है. आई गेस पिछले कुछ महीनों से इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, बहुत एग्रेशन था, जर्नी बहुत स्लो हो गई थी, बर्डन बहुत ज़्यादा, मे बी कुछ लोगों को वेट गेन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ होगा, एंड मूवमेंट बहुत कम हो गई होगी. बट August is going to make you feel a lot lighter emotionally as well as physically. Spiritually भी आप धीरे धीरे incline होते चले जाएंगे. You will start seeing a lot of signs also that you are on the right path. Okay, now let's check और क्या होने वाला है August month के अंदर for you. What else do you need to know about the month of August? What is going to happen in August? Okay, first up we have a Wheel of Fortune. Okay, now Wheel of Fortune kahin na kahin, as we looked into the energy earlier also, Wheel of Fortune भी आपको यही मैसेज देना चाह रहा है that in August things are going to happen for you that you have been waiting for a long time. जिन जिन चीज़ों को होने का भी आप इंतज़ार कर रहे थे ना, your faith in universe is going to get really really stronger. समवेयर आई ऑल्सो सी कि बहुत टाइम से ना आपको ऐसे लगता था, जो कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी किस्मत को बहुत ज़्यादा कोसते होते हैं कि यार मेरी तो मतलब किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ ना ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें होती रहती हैं. तो मुझे दिख रहा है आपकी रियलाइजेशन, आपकी फीलिंग्स इस चीज़ को लेकर, और आपका माइंडसेट इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है. यू विल रियलाइज़ कि हमारे लाइफ में जो भी होता है इट इज़ सपोज टू टीच अस अ लेसन ओनली. एंड हर चीज़ ना लाइफ के अंदर अपनी एक परफेक्ट टाइमिंग पर ही होती है, चाहे हम कितना भी उस चीज़ को पुश करते रहें, बट इट इज़ गोइंग टू हैपन at its divine timing, at its perfect timing only. तो लाइफ के अंदर इस चीज़ को लेकर रियलाइजेशन ज़रूर होगी इन द मंथ ऑफ अगस्त. एंड देखिए, जैसे मैंने कहा था कि इस मंथ के अंदर, मतलब इस पूरे साल के फर्स्ट हाफ के अंदर ही आपको ऐसा लगा आपकी बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है. स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं था, राइट, बट अगस्त से मुझे बहुत सारे चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं. आपकी किस्मत का पहिया जो है ना वो अब चलने वाला है. टाइम इज़ अबाउट टू चेंज, टाइम इज़ गोइंग टू चेंज, एंड इट इज़ गोइंग टू चेंज फॉर योर हाईएस्ट गुड ओनली. आपके फ़ायदे के लिए ही वो चेंज होगा. जितना अभी तक का आपका जर्नी जो रही है, इट वॉज फुल ऑफ अ लॉट ऑफ ड्रामा, इट वॉज फुल ऑफ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट वॉज़ रियली स्लो. कुछ भी चाहिए था उसमें भी इतना इतना समय लगा है ना, इतना इतना वेट करना पड़ा है आप लोगों को, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा ही अपने, जैसे मैंने कहा, किस्मत को कोसने लगे थे. बट डोंट वरी, टाइम इज़ अबाउट टू चेंज फॉर यू इन अगस्त. टाइम इज़ अबाउट टू चेंज फॉर गुड ओनली. एंड ये बात ना अब आपको बहुत अच्छे से रियलाइज़ भी होगी कि समय आने पर ना सारी चीज़ें अपने आप ही होने लगती हैं. नाउ नेक्स्ट अप वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. नाउ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है कि अबाउट योर करियर, आप शॉर्ट टर्म बैटल्स को या शॉर्ट टर्म गोल्स को लेकर नहीं चलिए. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने आप को आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो.
एंड उस 3 से 5 साल बाद देखने के लिए आज आपको क्या क्या एक्शंस लेने ज़रूरी हैं, इस चीज़ की प्लानिंग करते हुए अगर आप चलोगे ना, एज ए सेड टाइम इज़ चेंजिंग फॉर गुड, राइट। तो वो जो टाइम आपका बदलेगा ना, वो ऐसा बदलेगा कि आपको यहाँ तक पहुँचा देगा, विच इज़ योर ड्रीम, विच इज़ योर डिज़ायर। हर एक चीज़ में आप वहाँ तक, उस गोल तक ज़रूर पहुँच पाओगे। नाउ आई ऑल्सो सी इन दिस कि आप लोग बहुत ज़्यादा ना, अभी आपके माइंडसेट में ये चीज़ चल रही है कि जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ, बहुत जल्दबाजी में आओ आप, आपको जो चाहिए ना, ये जो गोल भी आप अपने लिए, राजा या रानी बनने का गोल जो अपने आप के लिए आप देखे हुए हो, आप चाहते हो कि वो जल्दी जल्दी हो जाए मेरे साथ, मैं 1 महीने में, 6 महीने में राजा बन जाऊँ, या साल भर में राजा बन जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बड़ी जीत के लिए ना समय भी बहुत लगता है। एंड स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, एज वी ऑल नो, कि जो स्लो ग्रोथ होगी ना, वो आपको थोड़े स्ट्रगल्स भी देगी, वो आपको थोड़ी हार्डशिप्स भी देगी, और वो आपको एक ऐसे पॉइंट तक भी लेकर जाएगी जहाँ पर आपकी लाइफ और आपकी जो सक्सेस रहेगी वो स्टेबल रहेगी। तो अपनी लाइफ के अंदर आप थोड़े से ना इमोशनल होने के बजाय प्रैक्टिकल हो जाओ। फाइंड दैट पैशन विद इन यू। जो आप, ये जो आपका गोल है ना, जस्ट राइट इट डाउन ऑन योर वॉल और ऑन योर वॉल पेपर, हैव इट समवेयर दैट यू कैन सी इट एवरी डे and remind yourself that I have a lot of time to achieve it. I have set this goal from like 3 years from now, I will be at this place. I will surely, आज से 3 साल बाद 2026 की डेट डाल दो उस पर कि 2026 तक ना यार मैं यहाँ पे होऊंगा या होंगी, कुछ भी हो जाए चाहे। तो प्रैक्टिकली चीज़ों को चलो, रैबिट नहीं बनना है यहाँ पर हमें, ओके। जल्दबाजी में नहीं चलना है, बिकॉज देन वी विल लूज द पर्सपेक्टिव। और जो चीज़ें फिर वो टाइम के साथ हमें सीखने को मिलती हैं ना, फिर हमें वो भी नहीं सीखने को मिलेंगी। सो इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिकल होकर चलिए, आप अपने डिसीजंस को प्रैक्टिकल होकर लीजिए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, एंड रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू नो आई एम इन इट फॉर अ लॉन्गर रन। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि 3-4 महीने में मैं करके फिर छोड़ दूँ। आई एम इन इट फॉर द लॉन्गर रन। मुझे लंबे समय तक के लिए इस चीज़ को स्टेबल रखना है, इस चीज़ को करना है। तो मैं उस हिसाब से, चाहे मुझे ज़्यादा टाइम लगे इसको अचीव करने में, मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। बट वंस आई अचीव इट, इट इज़ गोइंग टू बी सस्टेन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ओके। तो कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको यही बता रहा है दैट टाइम इज़ चेंजिंग फॉर गुड। एंड हो सकता है पिछले टाइम पीरियड में आपको कहीं ना कहीं अपने हार्डवर्क का भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, ओके। आप बहुत मेहनत कर रहे थे, तब भी आपको कुछ आउटकम, कुछ रिजल्ट, कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। बट आपका ये जो टाइम पीरियड है, ये आपको रिजल्ट भी देगा। एज ए सेड, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लोली स्लोली रिजल्ट देगा, बट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। टाइम इज़ चेंजिंग फॉर गुड नाउ। चीज़ें आपकी बनेंगी, काम आपके बनेंगे। बस आपने अपने ध्यान में एक ही चीज़ रखनी है कि प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लेने हैं, इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेने हैं, ज़्यादा भावनाओं में भी नहीं बहना है, ओके। नेक्स्ट अप इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ओके, तो राजा रानी दोनों ही आ गए हैं। आपको कहीं ना कहीं यही मैसेज मिल रहा है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको ना सही एडवाइस करते हैं, जो आपको सही पाथ पर गाइड करते हैं। बट मुझे दिख रहा है कि आप उनकी बातों को, क्योंकि दे आर क्वाइट हार्श, इट कुड बी योर पार्टनर, योर फ्रेंड, योर मदर, योर फादर और योर सिबलिंग एज वेल। बट क्योंकि उनके बात करने का तरीका जो है वो थोड़ा हार्श है, तो इस वजह से ना आप उनकी बातों को काफ़ी टाइम पर ओवरलुक कर जाते हो। बट दे आर अ ग्रेट एडवाइजर फॉर यू। दे माइट हैव हर्ट यू इन द पास्ट एज वेल। कुछ ऐसी चीज़ें आप दोनों के बीच में रही होंगी जिसकी वजह से आप हर्ट हुए, और इस वजह से आप इनको अभी इतना ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करते हो। बट मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि ये जो आपको एडवाइस देते हैं ना, इट कम्स फ्रॉम प्लेस ऑफ केयर, इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ कंसर्न फॉर यू। तो उस एडवाइस को आप ज़रूर कंसिडर करें। आई सी कि ये पास्ट के इश्यूज़ को जाने में और आपको कम्प्लीटली हील करने में टाइम ज़रूर लगेगा। एंड हो सकता है कि ये बॉन्ड जो है ये ज़्यादा टाइम के लिए स्टे या सस्टेन भी ना करे, फिर से भी प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग व्हेन यू आर विद दिस पर्सन, देयर एडवाइस फॉर यू इज़ क्वाइट जेन्युइन।
तो आप उन एडवाइस को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि दे आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर। मुझे दिख रहा है कि करियर को लेकर तो ज़रूर ही, एंड इन जनरल इन लाइफ ऑल्सो, ये एडवाइस आपको ज़रूर कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा इनके थ्रू। एंड क्या है ना, ये बहुत शार्प माइंडेड हैं, एंड जो भी होता है ही इज़ क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ही और शी कुड बी क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो सीधा आपको बोल देते हैं वो चीज़ें। तो उनको आप दिल पे लेने के बजाय, बुरा मानने के बजाय ना, ट्राई थिंकिंग अबाउट इट इन अ प्रैक्टिकल वे। इसको प्रैक्टिकल होके आप इनकी एडवाइस को अगर सोचोगे एंड फॉलो करोगे तो यू आर गोइंग टू सी ग्रेट रिजल्ट्स एज वेल। आई सी कि इन्होंने पास्ट में आपको काफ़ी हर्ट किया है, काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, लेकिन देखिए अगर हम पास्ट को लेकर बैठे रहेंगे ना तो ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे कैसे। सो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू लेट गो ऑफ पास्ट एंड मूव ऑन, बिकॉज कमिंग फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं, मुझे दिख रहा है अगस्त मंथ जो है ना, वो फाइनेंशियली हो सकता है उतना अच्छा ना रहे। तो यू डू नीड हेल्प फ्रॉम पीपल, ओके, यू डू नीड हेल्प फ्रॉम योर वेल विशर्स। आपको नॉट लाइक इन मॉनेटरी टर्म्स बट मोर लाइक एडवाइसेस फ्रॉम योर मेंटर्स, फ्रॉम योर सिबलिंग्स, फ्रॉम योर फैमिली। जैसे कि स्टार्टिंग में भी हम लोग देख रहे थे कि फैमिली की तरफ से है और वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू शायद नहीं समझ पा रहे। आपने शायद कोई नया जॉब स्टार्ट किया होगा, नया बिजनेस स्टार्ट किया होगा, जॉब छोड़ दिया होगा, या कुछ ऐसा नई अलग सी चीज़ आप कर रहे हो जिसमें उनका फेथ नहीं है, जिसमें लोग आप पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन दिस ऑल्सो डू वॉट यू वॉन्ट, फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर हार्ट, बट लिसन टू देयर एडवाइस एज वेल। दे आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव ओनली। उनकी चीज़ों को भी कंसिडर करो। देखो, नाउ कमिंग टू बैक टू दिस पर्सन, हो सकता है इनके साथ आने वाले मंथ में भी बहुत अच्छा सिनारियो ना रहे, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे, एंड हो सकता है आप थोड़ा डिससेटिस्फाइड फील करो इनकी वजह से, इनका और कोल्ड बिहेवियर हो सकता है आपकी तरफ, बट डोंट वरी बिकॉज आई सी इट विल बी टेम्प्रेरी ओनली। देखिए ये पर्सन थोड़े इसी तरीके के हैं, he does not stay at one place, he likes to move, he or she likes to move a lot, and इस वजह से हो सकता है थोड़े बहुत issues आपके बीच में आए in August also, but when it comes to your career, when it comes to your life, do listen to the advice given by this person because it is really going to help you. Now होता है ना एक strict teacher, we need a strict teacher in our life जो harshly हमारे मुंह पे सच बोल सके, so that we can improve ourselves. तो आप इनकी गाइडेंस को, इनकी जो भी है आपको एडवाइस करते हैं उसको ज़रूर कंसिडर कीजिए, उसको ज़रूर सुनिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। Now इनके साथ, even though your relationship is going to suffer, you are going to feel quite disappointed, but it is important for you in August. देखिए कहीं ना कहीं होता है ना कि कुछ चीज़ें हमारे मन के हिसाब से नहीं होती हैं, तभी हम उन चीज़ों पे ध्यान दे पाते हैं जिसको हमारी अटेंशन ज़्यादा चाहिए होती है। तो इन ऑगस्ट करियर शुड बी योर प्रायोरिटी, योर इमोशंस, योर पर्सनल लाइफ शुड नॉट बी, ओके। तो अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने जर्नी पे ध्यान दीजिए, हार्ड वर्क कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, प्रैक्टिकल होकर डिसीजंस लीजिए। 3 से 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो उस चीज़ पे वर्क कीजिए अगस्त के अंदर, एंड लाइक ओवरऑल भी प्लानिंग कीजिए आने वाले सालों में आपने क्या अचीव करना है, बेसिक उसके हिसाब से ही अपना प्लानिंग करके एक्शंस लीजिए। तो अगस्त मंथ आपका जो रहेगा, इट विल बी रियली ऑल अराउंड योर करियर ओरिएंटेड रहने वाले हो आप। इमोशनली हो सकता है, पता है क्या, बहुत टाइम से क्योंकि ये सब सिनारियो चल रहा है ना, तो हो सकता है अब आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क भी ना पड़े। अगर कोई बहुत ज़्यादा हार्श भी हो रहा है आपसे, या आपके तरफ उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो हो सकता है वो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट भी ना करे। तो करियर ओरिएंटेड रहने वाले हो आप, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो, और सारी एनर्जी जो आपकी रहेगी, इट विल बी अराउंड योर वर्क एंड योर करियर ओनली, ओके। नाउ लेट्स चेक कि ऑरिकल कार्ड से क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। व्हाट इज़ द गाइडेंस कमिंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ओके, काली माता का कार्ड आ गया फर्स्ट ही, वाओ ब्यूटीफुल। तो काली माता की एनर्जी से आप ज़रूर अगस्त के अंदर कनेक्ट करें। देखिए कहीं ना कहीं काली माता का जो रूप है वो बहुत ही विकराल रूप बताया जाता है, राइट, दैट
जैसे उनको द डिस्ट्रॉयर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अगर उनको जैसे गुस्सा आ जाता है, इफ़ शी टैप्स इनटू दैट एंगर एंड दैट एनर्जी, वो हर चीज वो देखती नहीं है फिर सामने मतलब कौन है वो हर चीज़ का अंत करती चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे हमें यही सीखने को मिलता है कि अपने अंदर की बुराइयों का ना एक के बाद एक के बाद एक अंत करते जाना चाहिए, until you find that child within you which is so pure, which is so innocent, which you lost long time ago. तो जिस तरीके से काली माता को अपने वास्तविकता का एहसास तब हुआ था जब उन्होंने शिव जी पर अपना पाँव रख दिया था। तो अपनी वास्तविकता का एहसास करने के लिए, अपनी रियल नेचर का एहसास करने के लिए, यू हैव टू फाइंड दैट इनर चाइल्ड विद इन यू, दैट हु इज़ रियली प्योर एंड हु इज़ रियली इनोसेंट, एंड फॉर दैट you need to start facing the things that fear you. Okay, get rid of that fear within you. Major spiritual changes are unfolding. This is your chance to soar. As when we started spiritual journey, जैसे मैंने कहा था, it's remarkable. Your spiritual journey is really remarkable. तो काली माता की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। काली माता की एनर्जी में टैप इन ज़रूर कीजिए। शी इज़ हेयर टू गाइड यू, शी इज़ हेयर टू टेक यू टू द पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट। शी वॉन्ट्स यू टू क्लियर आउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेगेटिविटी that are residing within you. Get rid of this energy, get rid of the blockages that are somewhere still stopping you from feeling your highest self and connecting with your inner child. तो ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। काली माता आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं। वो आपके अंदर की हर एक बुराई का, आपके अंदर रिजाइड करने वाले उस हर एक ईविल का नाश करने के लिए आपकी लाइफ में हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको ओवरलुक कर रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं। Now next up we have Master Buddha, which is talking about increased awareness, deep connection, trust your inner voice. जब ये सारी नेगेटिविटी को आप रिलीज करोगे तभी आप अपनी इनर वॉइस को सुन पाओगे, तभी आप अपने अंदर की रियल पोर्शन को समझ पाओगे। तो कहीं ना कहीं इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज करने से, लोगों की हेल्प करने से, गुड कर्मा क्रिएट करने से, थोड़ा बहुत भी मेडिटेशन करने से आपके अंदर की जो अवेकनिंग है, आपके अंदर की जो अवेयरनेस है, दैट विल इंक्रीज एंड हेल्प यू मेंटेन अ डीप कनेक्शन with yourself, and then you will be able to hear your inner voice. आप अपनी inner voice को सुन पाओगे, आप उसको trust कर पाओगे। होती है ना, कहते हैं ना gut feeling, listen to your gut feeling। तो आपकी gut feeling मुझे दिख रहा है it's quite strong, and for you to hear that and follow that and trust that, you need to increase your awareness, get rid of these negativities, face the things that fear you, face those things that scare you somewhere, and move on this journey. Just be more spiritually inclined, be more righteous in your deeds, and do some meditation that is going to help you in the longer run. देखिए अलग नेक्स्ट हमारा जो मैसेज था वो यही आ गया, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन का। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना अपनी लाइफ के अंदर, प्रे करो उसके लिए प्रे करो एंड यू विल डेफिनेटली रिसीव इट। ओके, कनेक्ट विद हेवन, कहीं ना कहीं अपने गॉड की एनर्जी, जिन भगवान में भी आप मानते हैं, कुड बी शिव जी, पार्वती माता, काली माता, कोई भी हो सकते हैं, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए, उनके मंत्र जो है ना उनको चांट कीजिए। देखिए इसमें आपके लिए एक रेमेडी ये भी निकल कर आ रही है कि आप काली माता को कोई मंत्र या फिर काली माता से रिलेटेड कोई भी प्रेयर हो, आप उसको अगस्त मंथ के अंदर चांट कीजिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी टू फेस योर फियर। इट विल रिमूव द फियर विद इन यू। या फिर आप भोलेनाथ का भी मंत्र है, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, उसका भी जाप कर सकते हैं इन अगस्त टू रिमूव फियर from your soul, to remove this negative energy from your soul. And pray करने से, contemplating on your actions will actually guide you on a path to become your higher self. Every action in your life then will be more, it will be more consciously taken. Every decision will be more consciously taken, and then you will be getting love and peace within your life. Okay, let go of the need to be right. ज़रूरी नहीं है हर वक्त सामने वाले को साबित करना पड़े कि हम सही हैं तुम गलत हो, या हम सही हैं तुम हमारा पर्सपेक्टिव नहीं समझ रहे हो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट।
इस पर इतनी एनर्जी अपनी गंवा देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. चूज पीस. ओके, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट. अपने आप को सही प्रूव करने की जो आपके अंदर इतनी ज़्यादा जिज्ञासा है ना, लेट गो ऑफ दैट. चूज पीस. ओके, शांति बना के रखिए. कह दीजिए कि हाँ, तुम सही हो, मैं भी अपनी जगह सही हूँ, अभी तुम्हें ये चीज़ नहीं समझ पा रही है, एंड इट्स ओके. You feel you are right, and that is okay. Be okay with that. Okay, don't let it make you feel uncomfortable. Choose peace. Mother healing is possible at this time. Okay, जैसे मदर होती है ना, बिल्कुल हमें हमारा इस तरीके से ख्याल रखती है, लाइक अपने सोल के बिल्कुल क्लोज रहकर, एक एक चीज़ का ध्यान रखकर. तो एट दिस टाइम इस तरीके की हीलिंग, जो एक जैसे छोटा बच्चा थोड़ा सा बीमार भी हो जाता है, तो मदर पूरी रात जाग कर भी और हर तरीके से उसकी वेलबींग के लिए एफर्ट्स करती है. तो मदर हीलिंग कहीं ना कहीं आप अपनी कीजिए, यू नो, अपने सोल को हील कीजिए उसी तरीके से जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को अटेंशन देती है कॉन्स्टेंटली, सो दैट ही इज़ कंफर्टेबल एंड ही इज़ एट पीस. उसी तरीके से आप अपने ख्याल रखिए इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट. एंड लास्टली वी हैव मर्क्यूरी विच सेज ओपन कम्युनिकेशन. Now get a weight off your chest, speak up with love and be heard. Now जैसे कि यहाँ पर भी हमें दिख रहा है let go of the need to be right, and उधर दिख रहा है that there is open communication that is required. तो speak up with love. Okay, आप कुछ भी अपना पॉइंट रखना भी चाहते हैं, रखो, उसको बहुत प्यार से रखो. जो भी आपको लग रहा है कि अंदर मेरे भरा हुआ है एंड आई शुड जस्ट से इट आउट लाउड, उसको बोलो. गेट दैट वेट ऑफ योर चेस्ट, बट स्पीक अप विद लव ओनली. यू शुड बी एक्टिंग आउट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव ओनली. एंड उसके बाद सामने वाला समझता है या नहीं समझता, उससे अपने आप को अटैच बिल्कुल भी मत करो. ओके, बिकॉज लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट. जैसे कि हमने इसमें देखा कि लेट गो ऑफ दिस नीड टू प्रूव योर पॉइंट, राइट. अपना पर्सपेक्टिव सामने रखो, फिर सामने वाला समझे ना समझे, इट इज़ अप टू देम ओनली. जैसे श्री कृष्ण भी कहते हैं कि को किसी की कोई भी कही हुई बात होगी ना, इंसान उसको अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसका मीनिंग जो होता है ना, वो एक्सेप्ट करता है, वो अंडरस्टैंड करता है. किसी भी बात का जो अर्थ होता है वो इंसान अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसको अपनाता है, उसको एक्सेप्ट करता है, उसको समझता है. तो हो सकता है सामने वाले की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो आपकी बात को समझ पाए. तो आप अपना प्रूफ पॉइंट करने के लिए डोंट गो नट्स ओवर इट, डोंट गो क्रेजी ओवर इट. ओके, जस्ट गेट दैट वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ड. Okay guys, so that's about it. This was your reading for the month of August. I hope you all enjoyed it. I also have remedy for you. As I said कि काली माता से रिलेटेड कोई भी रेमेडी आप कर सकते हैं, काली माता का कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं. सैटरडे को आप ज़रूर मंदिर जाइए और काली माता के नाम से दिया जलाइए, या फिर शाम के समय में आप अपने घर में सैटरडे में भी दिया जला सकते हैं. दैट विल, काली माता के नाम से स्पेशली आप जलाइए तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा. दूसरी चीज़, आप शिव जी का मंत्र भी यूज़ कर सकते हैं टू रिमूव ऑल द नेगेटिविटी, विच इज़ ओम नमो भगवते रुद्राय नमः. इस मंत्र का 108 बार आप डेली जाप कीजिए इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा. नाउ दिस इज़ अबाउट इट. दिस वॉज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड आई होप यू ऑल एन्जॉयड इट. Now see you in the next video. Bye bye, take care. Har Har Mahadev.